Hello students, welcome to the exam idea classes. Myself Humaira Khan. Today we are going to discuss about some important topics of the biology. So here we will take chapter molecular basis of inheritance. So in this chapter, first of all, we will discuss about some concept that comes in the examination about the DNA. So as we know very well, the DNA is the genetic material. That means, what is the meaning of the genetic material? The genetic material is that which will be transferred from one organism to the another organism. So in this chapter there is a very important, we can say, reaction or a very important process, that is central dogma of molecular biology. So here we will discuss about central dogma of molecular biology. Wait for a while. Okay. So central dogma of molecular biology. So what is the meaning of the central dogma of molecular biology? Here we have DNA. Where the DNA is located? In prokaryote, there is no nucleus. So the DNA will be located into the cytoplasm, that is known as the nucleoid region. And in the eukaryote, the DNA will be located into the nucleus, because in eukaryote the well-defined nucleus will be present, and in prokaryotes the nucleus is absent. So as we know, the DNA, and what is the DNA? DNA is a deoxyribonucleic acid. So DNA can replicate, or the DNA can make its exact copy. What is the meaning of the replicate? Replicate का मतलब होता है कि DNA अपने जैसी exact copy बना सकता है. As we know, there is one other nucleotide, that is the RNA, ribonucleic acid, and the DNA, deoxyribonucleic acid. So DNA have the capability to make its exact copy. So and the RNA is not having this kind of the ability. So DNA से, so central dogma of molecular biology क्या कह रहे हैं आपका, कि DNA से जब DNA का formation होगा, that process is known as replication. That is also known as the duplication. Replication means duplication. The DNA can make its exact copy. Then the information will goes to the, so there will be the formation of mRNA, and that process is known as transcription. And from the mRNA, the information will travel to, so information अब कहाँ जा रही है आपकी, that means mRNA से किस चीज़ का formation होगा? There will be the formation of, protein. So this process is known as this process is known as translation. So DNA to DNA, this is known as a replication, and there is an enzyme that is known as DNA dependent DNA polymerase. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. ये सेंट्रल डॉगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी आप अगर समझ जाएंगे तो बहुत ज़्यादा आपके लिए ईजी हो जाएगा. कुछ कॉन्सेप्ट यहाँ से, कुछ आपके एमसीक्यूज भी आते हैं, लाइक
सो डीएनए से जब आपका डीएनए बनेगा, दैट इज द रेप्लिकेशन, और यहाँ पर आपका क्या होगा, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज ये आपका वर्क करेगा। देन सेकंड प्रोसेस इज योर ट्रांसक्रिप्शन। सो इन केस ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन, डीएनए से आपका एमआरएनए का फॉर्मेशन हो रहा है। सो हेयर इज एन एंजाइम दैट इज नोन एज डीएनए डिपेंडेंट RNA polymerase. So simply you can write RNA polymerase, और यहाँ पर भी आप सिंपली DNA polymerase राइट कर सकते हो। बट यहाँ पर हमारा क्या है, DNA से DNA बन रहा है, दैट इज वाई वी आर सेइंग DNA डिपेंडेंट DNA polymerase, और वहाँ पर हमारा DNA से RNA बन रहा है, दैट इज वाई DNA डिपेंडेंट RNA polymerase. Then there will be the translation. बेसिकली यहाँ जो हमारे पास mRNA बना है, ये जो mRNA बना है, यहाँ पर हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन आई है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ द जेनेटिक कोड। यहाँ जो इन्फॉर्मेशन आई है वो जेनेटिक कोड में आई है, और जो हमारा जेनेटिक कोड है, ये जो हमारे जीन्स होते हैं, ये अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं बाय द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन। किस चीज़ का फॉर्मेशन करके? प्रोटीन का फॉर्मेशन। जब तक हमारी बॉडी के अंदर कोई भी, हमारी बॉडी है कोई भी प्लांट और एनिमल, वेदर इट इज़ प्लांट और एनिमल, कि अगर आपका क्या हो रहा है कि एवरी जीन विल एक्सप्रेस इटसेल्फ बाय मेकिंग अ प्रोटीन, हर एक जीन अपने आप को एक्सप्रेस करेगा बाय मेकिंग द प्रोटीन ओनली। अगर प्रोटीन का फॉर्मेशन नहीं होगा, दैट मीन्स अगर जीन एक्सप्रेस नहीं करेगा अपने आप को, तो वहाँ पर आपका प्रोटीन का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। तो ये जो जेनेटिक कोड है, अब इस जेनेटिक कोड को आपने ब्रेक करना है। तो आप जब जेनेटिक कोड को ब्रेक करेंगे, तो ये जो आपका जेनेटिक कोड होता है, एज वी हैव 64 कोडोन्स, हमारे पास 64 कोडोन्स होते हैं, एंड जिसमें से 61 हमारे अमीनो एसिड्स को कोड करते हैं। तो ये जो आपके जेनेटिक कोड हैं, दे विल कोडेड द डिफरेंट काइंड्स ऑफ द अमीनो एसिड, अलग अलग अमीनो एसिड्स को कोड करेंगे। तो यही अमीनो एसिड, और ये जब अमीनो एसिड की एक आपकी चेन बनती है, उस चेन को आप क्या बोलते हो? पॉलीपेप्टाइड। दैट इज द पॉलीपेप्टाइड चेन। जो हमारी पॉलीपेप्टाइड चेन बनेगी, तो वही हमारी क्या कहलाएगी? दैट विल फॉर्म आर प्रोटीन। वो हमारे प्रोटीन का फॉर्मेशन करती है। क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट द सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। एज वी नो कि जो हमारा प्रोकैरियोट है, ठीक है, जो हमारे प्रोकैरियोट है, प्रोकैरियोट में हमारा जो क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है, दैट इज प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म, और साइटोप्लाज्म के अंदर जब वो प्रेजेंट होगा, दैट पोर्शन इज सेड टू बी योर न्यूक्लियोइड रीजन। और इन यूकैरियोट्स द क्रोमोसोम इज, और वी कैन से द डीएनए इज प्रेजेंट। जो डीएनए प्रेजेंट है वो हमारा कहाँ पर प्रेजेंट है? डीएनए हमारा प्रेजेंट है, जो डीएनए हमारा कहाँ पर प्रेजेंट है? डीएनए प्रेजेंट है हमारा न्यूक्लियस के अंदर। जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस बहुत आपका माइन्यूट है, और जो हमारा क्रोमोसोम है, सो व्हाट इज द क्रोमोसोम, व्हाट इज द कॉम्पोजिशन ऑफ द क्रोमोसोम? सो क्रोमोसोम इज मेड अप ऑफ, क्रोमोसोम किसका बना हुआ है? क्रोमोसोम इज मेड अप ऑफ डीएनए प्लस हिस्टोन, डीएनए प्लस हिस्टोन, प्रोटीन, डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन। तो जो हमारा बना हुआ है क्रोमोसोम, डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन। तो अब ये जो डीएनए है, डीएनए बेसिकली जो हमारा होता है, दिस इज द नेगेटिवली चार्ज, डीएनए इज नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन। और ये जो हिस्टोन प्रोटीन है, यहाँ पर हमारे प्रेजेंट होते हैं अमीनो एसिड्स, सो दीज आर द पॉजिटिवली चार्ज। तो ये हमारे क्या है? पॉजिटिवली चार्ज हैं।
तो जो हमारा डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन है दैट विल बी प्रेजेंट इन अ वेरी हाईली कॉइल्ड मैनर। तो हाईली कॉइल्ड मैनर में कैसे प्रेजेंट होते हैं, लाइक द बीडेड इन अ स्ट्रिंग, जिस तरह से एक स्ट्रिंग के अंदर, एक धागे के अंदर कुछ बीड्स प्रेजेंट होते हैं तो उसको हम बोलते हैं। सो लाइक दीज आर प्रेजेंट इन दिस मैनर, ये इस तरह से प्रेजेंट होते हैं। और वी कैन से लाइक दिस, सो बीडेड इन अ स्ट्रिंग। तो ये जो हमें बीड्स नजर आ रहे हैं, व्हाट इज दीज बीड्स, बेसिकली ये जो बीड्स होते हैं दिस इज नोन एज न्यूक्लियोसोम। ये एग्जाम का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, न्यूक्लियोसोम। और यहाँ पर हमें क्या नज़र आ रहा है, ये जो हमारा स्ट्रिंग है दिस इज द डीएनए। तो अगर हम न्यूक्लियोसोम की बात करते हैं कि व्हाट इज द न्यूक्लियोसोम मॉडल, तो न्यूक्लियोसोम मॉडल जो है वो हमारा डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन का बना हुआ होता है। सो हाउ कैन वी से कि व्हाट इज द स्ट्रक्चर और किस तरह से रैप्ड है हमारा, क्योंकि जो हमारा न्यूक्लियस है वो बहुत छोटा है और हमारा क्रोमोसोम जो है वो बहुत लेंदी है। सो इट विल बी प्रेजेंट इन अ हाईली कॉइल्ड मैनर। तो हाईली कॉइल्ड मैनर में ये जो हमारा न्यूक्लियोसोम है, तो व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूक्लियोसोम, तो यहाँ पर जो हमारा डीएनए होगा वो हिस्टोन को रैप करेगा और हेयर विल बी अ हिस्टोन ऑक्टामर, जिसको हम क्या बोल रहे हैं हिस्टोन ऑक्टामर, ठीक है, हिस्टोन ऑक्टामर। सो व्हाट इज द स्ट्रक्चर, सो दिस इज द कोर ऑफ आर हिस्टोन ऑक्टामर। ये हमारे हिस्टोन ऑक्टामर का कोर है, ठीक है, ये हमारा कोर है। तो यहाँ पर हमारा, सो दिस इज द, वी कैन से दिस इज द कोर ऑफ हिस्टोन ऑक्टामर, ये हिस्टोन ऑक्टामर का कोर है। अब यहाँ पर हमारे कितने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे यहाँ पर हिस्टोन प्रोटीन के, लाइक इन अ पेयर H2A, H2B, H3 एंड H4। सो H2A दैट मीन्स ये 8 प्रेजेंट होंगे। सो ये जो है हमारा दिस इज द कोर, यहाँ पर हमारे ऑक्टामर ऑब्वियसली कि इसको हम क्या बोल रहे हैं 8। एंड हेयर विल बी अ नेगेटिवली चार्ज लाइक दिस, नेगेटिवली चार्ज डीएनए विल बी प्रेजेंट। सो दिस इज द negatively charged DNA which wrap around the histone octamer and here will be a linker, ठीक है, ये हो गया हमारा, इसको हमने कहा दिस इज द डीएनए लिंकर, जो हमारा लिंक कर रहा है, जो रैप करके यहाँ पर बाइंड करा रहा है, दैट इज द H1 लिंकर। बेसिकली इसको हम H1 लिंकर कहते हैं। सो दिस इज द H1 लिंकर, ये हमारा H1 लिंकर है। तो इसी तरह से हेयर विल बी द अनदर वन, यहाँ हमारा दूसरा जो है वो जो है ऑक्टामर प्रेजेंट होगा, कोर प्रेजेंट होगा और यहाँ इस तरह से ये हमारा क्या कर रहा है, बाइंड करेगा लाइक दिस। सो दिस विल बी, सो अब ये जो स्ट्रक्चर है हमारी जो हमें यहाँ नज़र आ रही है, तो ये जो स्ट्रक्चर है ये इस तरह की हमारी स्ट्रक्चर नज़र आती है, दैट इज beads in a string, beads in a strings, जो हमारी एक जो string है, जो धागा है उसमें। so this one will be the nucleosome, ये हमारा nucleosome कहलाता है। so this is a very important point regarding examination point of view. Now we will discuss the another topic. So here, as we were discussing about the central dogma of molecular biology, so first of all in the central dogma of molecular biology we will take the replication of the DNA, how the replication will take place. So here we'll take the replication means we have to make a exact copy, we have to make a exact copy of our DNA, हमें अपने DNA की exact copy बनानी है। so as we know कि जो हमारा DNA होता है दिस इज द डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर
और इसकी पोलैरिटी हेयर विल टेक द 5 प्राइम टू 3 प्राइम एंड हेयर विल बी द पोलैरिटी 3 प्राइम टू 5 प्राइम, और यहाँ बीच में हमारे प्रेजेंट होंगे नाइट्रोजिनस bases, and these nitrogenous bases will be held with each other by the hydrogen bonds. So in the DNA हमें पता है कि adenine will always bind with the thymine with double hydrogen bond and the guanine will always bind with the cytosine with triple hydrogen bond. So this adenine and guanine ये जो हैं हमारे, ये दोनों हमारे क्या होते हैं, प्यूरिन, और थायमिन एंड साइटोसिन जो होते हैं वो हमारे होते हैं पायरिमिडिन। अब हमारे पास जो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है डीएनए का, तो ये कैसा है, हाईली कॉइल्ड मैनर, ये बहुत ही ज़्यादा कॉइल्ड मैनर में प्रेजेंट है। सो इसमें जो ये जो टॉर्क नज़र आ रहे हैं आपको, लाइक दिस इज़ द ट्विस्टिंग, सो हमने इसको क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अनकॉइल द डीएनए। सो अनकॉइल द डीएनए, अनकॉइल द डीएनए। तो अनकॉइल करने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर अनकॉइलिंग के लिए हमें यहाँ पर एक एंजाइम की रिक्वायरमेंट होती है, दैट इज नोन एज topoisomerase. So there is an enzyme that is known as a topoisomerase. तो यहाँ पर हमारा अब जो डीएनए है ये कैसा हो जाएगा, ये हमारा अनबाइंड हो जाएगा, ठीक है, अनकॉइल्ड हो जाएगा, एंड इसकी पोलैरिटी इट विल बी लाइक दिस। सपोज यहाँ पर प्रेजेंट है हमारा ATGC, तो इसकी कॉम्प्लीमेंट्री चेन क्या होगी यहाँ पर, TAC एंड G विद द डबल बॉन्ड, डबल हाइड्रोजन बॉन्ड, डबल हाइड्रोजन बॉन्ड, here will be the triple hydrogen bond and triple hydrogen bond. So before starting that, यहाँ पर अभी हमें पता होना चाहिए कि which enzyme is responsible for the replication. So DNA dependent DNA polymerase is responsible for the replication. तो अब इस DNA का जब हम डुप्लीकेशन करेंगे तो डुप्लीकेशन के लिए it should be open. जब आपने किसी चीज़ को एग्जैक्ट कॉपी बनानी है तो वो आपका क्या होना चाहिए, वो ओपन होना चाहिए। तो ये जो स्ट्रैंड है, सो बोथ द स्ट्रैंड विल एक्ट एज टेम्पलेट। ये स्ट्रैंड हमारी टेम्पलेट का फॉर्मेशन करेगी एंड दिस स्ट्रैंड विल ऑल्सो बी द टेम्पलेट। टेम्पलेट का मतलब होता है एक मोल्ड, मोल्ड कि ये मोल्ड है और मोल्ड के अंदर हम कोई भी चीज़ पोर कर देते हैं तो वो उसी का ही क्या ले लेती है, शेप ले लेती है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी हमें क्या करना है, यहाँ पर जो हमारी दोनों स्ट्रैंड है डीएनए की, सो दैट विल बी द टेम्पलेट, वो हमारी टेम्पलेट स्ट्रैंड है। तो यहाँ पर क्या होगा, नाउ देयर विल बी द replication fork by the breakdown of the hydrogen bonds. अब यहाँ पर हमारे हाइड्रोजन बॉन्ड्स का ब्रेकअप स्टार्ट होगा फ्रॉम वन पॉइंट। सो हेयर यहाँ से क्या हो रहा है, हमारे हाइड्रोजन बॉन्ड्स का ब्रेकअप हो गया। सो यहाँ पर हमारे जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स थे, सो फर्स्ट वी विल राइट द पोलैरिटी, ये हमारी पोलैरिटी है, ठीक है। ये हमें पोलैरिटी का बहुत ध्यान रखना है कि कहाँ से कहाँ स्टार्ट होगा। तो यहाँ की जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं दे हैड ब्रेक्ड, ये यहाँ के ब्रेक हो चुके हैं और यहाँ पर हमारे जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं वो प्रेजेंट हैं, लाइक दिस वन, या यहाँ ट्रिपल बना लीजिए, ये आप अपने अकॉर्डिंग कैसे भी इसको प्लेस कर सकते हो। सो यहाँ पर अब ये जो हमारे हाइड्रोजन बॉन्ड्स बने हैं, ठीक है, ये जो हमारे हाइड्रोजन बॉन्ड्स बने हैं, तो अब ये क्या है, यहाँ से ये ब्रेक हो गए बाय द हेल्प ऑफ एन एंजाइम दैट इज नोन एज हेलिकेज। आई डोंट नो व्हाट इज गोइंग ऑन। हेलिकेज, यहाँ पर हमारा क्या ब्रेक हुआ है, यहाँ पर हमारे हाइड्रोजन बॉन्ड्स ब्रेक हुए हैं बाय एन एंजाइम दैट इज नोन एज द हेलिकेज। तो अब ये आप देख रहे हो, तो दिस इज नोन एज द रेप्लिकेशन फॉर्क। यहाँ पर किस चीज़ का फॉर्मेशन हुआ है, यहाँ हुआ है फॉर्मेशन हमारा
रेप्लिकेशन फॉर्क का। अब यहाँ पर क्या होता है कि जैसे ही ये हमारी अनकॉइलिंग हुई, हमारे हाइड्रोजन बॉन्ड्स ब्रेक हुए, सो जब यहाँ पर हमारा रेप्लिकेशन फॉर्क बना है, सो देयर आर सम वी कैन से कुछ इस तरह की टेंडेंसी, वी कैन से देयर इज़ अ टेंडेंसी ऑफ दिस कि ये जो है ये आपस में बाइंड भी कर सकते हैं, तो ताकि ये अगर ये बाइंड करने लगेंगे तो यहाँ पर रेप्लिकेशन नहीं होगा। तो जब ये हमारा यहाँ पर हम ये चाह रहे हैं कि ये बाइंड ना हो, तो जब ये बाइंड ना हो तो यहाँ पर क्या होता है, हमारा एक क्या आता है SSBP, सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन। यहाँ सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन आता है और वो सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन यहाँ पर अगर अटैच हो जाता है तो जैसे ये लॉक हो गया, अब ये रेप्लिकेशन फॉर्क आपका एज इट इज़ ही रहेगा, ऐसा नहीं बनेगा। सो अब यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं कि क्या हमारा एग्जैक्ट प्रोसेस है रेप्लिकेशन का। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या होगा, जो हमारा एंजाइम, मेन एंजाइम है, दैट इज़ द DNA पॉलीमरेज। जो हमारा DNA पॉलीमरेज है उसकी टेंडेंसी है वो आपका वर्क करेगा 5 प्राइम टू 3 प्राइम की स्ट्रैंड बनाएगा, दैट विल फॉर्म द स्टैंड ऑफ अ 5 प्राइम टू 3 प्राइम। तो जो हमारा DNA पॉलीमरेज है, तो ये जो DNA पॉलीमरेज 5 प्राइम टू 3 प्राइम बनाएगा, तो यहाँ हम देख रहे हैं कि ये जो हमारी पोलैरिटी है, दैट इज द 5 प्राइम टू 3 प्राइम। अब क्या हो रहा है यहाँ पर कि जो हमारा सबसे पहले क्या होगा कि देयर विल बी अ वेरी स्मॉल स्ट्रेचनिंग ऑफ द RNA प्राइमर। यहाँ पर हमारा एक छोटा सा RNA प्राइमर आएगा एंड दैट विल स्टार्ट द रेप्लिकेशन, वो रेप्लिकेशन को स्टार्ट करेगा। तो जब यहाँ पर जैसे ही स्टार्टिंग हो जाएगी RNA प्राइमर से रेप्लिकेशन की, तो जो हमारा DNA पॉलीमरेज है दैट विल स्टार्ट द रेप्लिकेशन फ्रॉम अ स्टैंड दैट इज द फ्रॉम 5 प्राइम टू 3 प्राइम। तो यहाँ पर ये होगा, ये अब ये कंटिन्यूएशन में, ये दैट विल बी इन द फॉर्म, ये कंटिन्यूएशन में रहेगा। सो हियर विल बी द 5 प्राइम टू 3 प्राइम, ये 5 प्राइम से 3 प्राइम हो जाएगा एंड दिस इज नोन एज, ये जो हमारी न्यू स्ट्रैंड बनी है दिस इज नोन एज कंटिन्यूअस स्ट्रैंड और दिस इज नोन एज लीडिंग स्ट्रैंड, कंटिन्यूअस स्ट्रैंड एंड लीडिंग स्ट्रैंड। इसको आपने कहा क्योंकि ये आपकी कंटिन्यूअसली बनती चली जा रही है, तो यहाँ पर ये रेप्लिकेशन फॉर्क जो है हाइड्रोजन बॉन्ड्स आपके चले जाएंगे और न्यू हमारी जो स्ट्रैंड है वो बनती चली जाएगी। अब क्या होगा यहाँ पर कि अब हमारा जो नई स्ट्रैंड है, जो हमारी दूसरे टेम्पलेट पर, क्योंकि वी हैव द 2 टेम्पलेट्स, अब इस टेम्पलेट पर हमारी बननी है नई स्ट्रैंड, तो न्यू स्ट्रैंड जो हमारी बनेगी, अब हमें ये पता है कि DNA पॉलीमरेज हमारा 5 प्राइम टू 3 प्राइम बनाएगा। तो अगर हम यहाँ से बनाएं नई स्ट्रैंड 5 प्राइम टू 3 प्राइम, सो द पोलैरिटी विल बी द सेम। पोलैरिटी क्यों भाई, पोलैरिटी सेम हो जाएगी, और जो पोलैरिटी यहाँ सेम हो रही है वो ऐसा होगा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, जो आपका DNA है वो उसकी पोलैरिटी क्या होती है, अपोजिट होती है, बिकॉज दे आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है। तो अब क्या हो रहा है यहाँ पर, अब आप देख रहे हो, तो अब क्या होगा, जो हमारा DNA पॉलीमरेज है, तो जो DNA पॉलीमरेज है या प्राइमर स्टार्ट करेगा, सो दैट विल नॉट स्टार्ट फ्रॉम दिस पॉइंट, इट विल स्टार्ट फ्रॉम दिस पॉइंट, यहाँ से स्टार्ट करेगा आपका रेप्लिकेशन। तो जो आपका RNA प्राइमर है वो DNA पॉलीमरेज को लेकर आएगा एंड इट विल स्टार्ट द रेप्लिकेशन फ्रॉम दिस पॉइंट। और क्या, क्योंकि हमें पता है टेंडेंसी 5 प्राइम टू 3 प्राइम, सो हेयर विल मेक द 5 प्राइम टू 3 प्राइम, और क्योंकि उसकी टेंडेंसी यहाँ से बनाने की नहीं है, अंदर से बनाने की नहीं है, बाहर से बनाने की है, सो वो बनाएगा और बाहर निकल जाएगा। देन अगेन दोबारा से क्या होगा, प्राइमर लेकर आएगा DNA पॉलीमरेज को, फिर वो एंटर करेगा एंड इट विल मेक अनदर फ्रेगमेंट दैट इज अ 5 प्राइम टू 3 प्राइम। अगेन इट विल मूव आउट, फिर अंदर आएगा एंड इट विल मेक द अनदर फ्रेगमेंट दैट इज द 5 प्राइम टू 3 प्राइम। तो यहाँ पर इस तरह से जो हमारी न्यू स्ट्रैंड बनेगी वो हमारी किस में बनेगी, इन 2 फ्रैगमेंट्स, तो वो फ्रैगमेंट्स में बनेगी। सो दीज फ्रैगमेंट्स और दिस स्ट्रैंड इज नोन एज डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड। इसको आपने क्या कहा, डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड, और
lagging strand, discontinuous strand and lagging strand, and these fragments are said to be the Okazaki fragments. इनको आपने क्या बोला? ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स. बच्चों आज थोड़ा सा बोर्ड प्रॉब्लम कर रहा है, सो प्लीज डोंट माइंड. ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स. अब यहाँ पर हमारे बन गए ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स. आई एम मेकिंग इट अगेन हेयर. यहाँ पर मैं बना रही हूँ. लाइक यहाँ पर हमारी पोलैरिटी थी 5 प्राइम टू 3 प्राइम एंड 3 प्राइम टू 5 प्राइम. तो यहाँ पर बनी हमारी न्यू स्ट्रैंड दैट इज ऑफ द 5 प्राइम टू 3 प्राइम, और यहाँ पर हमारी बनी एक डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड फ्रॉम 5 प्राइम टू 3 प्राइम, 5 प्राइम टू 3 प्राइम एंड 5 प्राइम टू 3 प्राइम. एंड नाउ दिस स्ट्रैंड, अब ये जो हमारे ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स बने हैं, तो अब ये डीएनए में इस तरह से तो प्रेजेंट नहीं होंगे. तो क्या होगा, यहाँ पर एक हमारा न्यू एंजाइम आएगा दैट इज नोन एज डीएनए लाइगेज, दैट इज नोन एज द मॉलिक्यूलर ग्लू. इसको आपने क्या बोला? मॉलिक्यूलर ग्लू. और ये जितने भी हमारे ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स हैं उनको क्या कर देगा? ये इन सबको बाइंड कर देगा. तो जब ये बाइंड कर देगा, सो नाउ वी आर हैविंग द 2 strands of our DNA, so that and having the polarity 5 prime to 3 prime, 3 prime to 5 prime. ये हमारी this one, ये हमारी ये हो जाती है. और इसी तरह से हमारी this one, जो हमारी ये वाली स्ट्रैंड बनी थी, ये हमारी नई स्ट्रैंड. ऐसे से धीरे धीरे करके ग्रेजुअली यहाँ से बीच में से हमारे हाइड्रोजन बॉन्ड करते चले जाएंगे, और हमारी जो है रेप्लिकेशन इस तरह से हमारी कंटिन्यू होती चली जाएगी एंड डिफरेंट एंजाइम्स विल वर्क देयर. तो यहाँ पर हमने याद रखने हैं जो हमारे डिफरेंट एंजाइम्स है, दैट इज द टोपोआइसोमरेज दैट विल अनवाइंड द डीएनए एंड द हेलिकेज दैट विल ब्रेक द हाइड्रोजन बॉन्ड्स. आरएनए प्राइमर आएगा दैट विल स्टार्ट द डीएनए रेप्लिकेशन, और कंटिन्यूएशन में जो हमारा मेन एंजाइम है डीएनए पॉलीमरेज, वो हमारा रेप्लिकेशन को लीड करेगा. एंड एक एंजाइम आएगा हमारा डीएनए लाइगेज, जो हमारे जितने भी ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स हैं उनको ज्वाइन करेगा एंड विल हैव द 2 स्ट्रैंड, द न्यू 2 स्ट्रैंड्स ऑफ आवर डीएनए फ्रॉम द सिंगल वन. सो दिस इज द replication. So we have discussed the first part of the central dogma of molecular biology.